حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ لیکن اسلام نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع عطا کیا کہ وہ اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے اس دور کی بڑی طاقتوں سے ملے، یعنی روم اور ایران کے بادشاہوں سے۔ اور ان دونوں بادشاہوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان بن گئی جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو چکی ہے اور جس کو تاریخ برابر دہراتی رہے گی۔ ایران کے بادشاہ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ سننے سے تعلق رکھتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بادشاہوں کے پاس بھیجنے کے لیے دعوتی خطوط ارسال فرمائے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان کاستوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے اس سے پہلے ان کو کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا، اور پریشانی یہ تھی کہ وہ ان بادشاہوں کے مزاج اور زبانوں سے بھی بالکل ناواقف تھے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان بادشاہوں کو اپنے پرانے دین کو چھوڑنے اور اسلام کو اختیار کرنے کی دعوت دینی تھی، یعنی ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت تھی جو گزشتہ زمانے میں ان کے حکم پر عمل کرنے والی رہ چکی تھی۔ یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ معاملے کی اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آنا نئی زندگی پانے کے برابر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے جمع فرمایا اور ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اجمی بادشاہوں کی طرف بھیجوں۔ تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا ہر پیغام خوشی خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو جہاں چاہیں بھیج دیں۔ کسریٰ کے پاس دعوت اسلام لے کر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب اور عجم کے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انتخاب فرمایا۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں ایران کے بادشاہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ پہلے زمانے میں ہر ایرانی بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام خسرو پرویز تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا اور بیوی بچوں سے رخصت ہو کر روانہ ہو گئے۔ وہ راستے میں صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے اور سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی خوبصورتی اور صفائی کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں اس حال میں آئے کہ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سا چوغا تھا، اور ان کی شکل صورت سے دیہاتی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا، اور ان کے دل میں اسلام کی عزت و عظمت اور ایمان کی قوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کسرائی نے جب ان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے تجھے دوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑ دو اس کو، میرے پاس آنے دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے عرب ترجمان کو بلایا جو ہیرا کا باشندہ تھا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔
चनाचा इसने ख़त खोल कर पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाहि इला कसरा अजीम फ़ारिस सलामुन अला मिनत तबात अलहुदा। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये ख़त है ईरान के बादशाह कसरा की तरफ। सलामती इसके लिए जो हिदायत की राह पर चला। कसरा की बदबख्ती ख़त को इतना हिस्सा ही सुनते ही इसके सीने में गैज़ व गज़ब की आग भड़क उठी। इसका चेहरा सुर्ख हो गया और गर्दन की रगें फूल गईं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त का आगाज़ अपने नाम से फरमाया था। इसने तर्जमान के हाथ से ख़त झपट लिया बगैर ये जाने कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और इस ख़त के टुकड़े टुकड़े करते हुए चीख उठा, मेरा ग़ुलाम होकर उसे ये जुर्रत कैसे हुई कि मुझे इस तरह मुखातिब करे। फिर उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरबार से निकाल बाहर करने का हुक्म दिया। चुनांचे वो वहाँ से निकाल दिए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार से निकले तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि अब अल्लाह ताला इनके साथ क्या मामला करने वाला है। क्या वो कत्ल कर दिए जाएंगे या उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुँचाने के बाद अब मेरा जो भी हशर हो, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। और अपनी सवारी पर सवार होकर चले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोई। इधर जब कसरा का गुस्सा जाता रहा तो इसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरबार, अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, जब और अपनी सवारी पर सवार होकर चले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोई। इधर जब कसरा का गुस्सा जाता रहा तो इसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दोबारा अपने सामने पेश किए जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो नहीं मिले। इसके आदमियों ने उन्हें बहुत तलाश किया मगर इसका कोई पता ना चला। इन लोगों ने जज़ीरा अरब तक जाने वाले तमाम रास्तों को छान मारा मगर वो इनसे हाथ से बिल्कुल निकल चुके थे। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार नबी में हाजिर हुए, उन्होंने कसरा के साथ पेश आने वाले वाक़े की मुकम्मल कारगुजारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दी और ख़त फाड़ने के वाक़े से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। उनकी पूरी कारगुजारी सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, अल्लाह ताला इसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दे। इधर कसरा ने अपने यमन के गवर्नर फायजान को लिखा कि इस शख्स के पास जिसने हिजाज में नबूवत का दावा किया है, अपने दो कवि बहादुर आदमियों को भेजो और उन्हें हुक्म दो कि उसे पकड़ कर लाएं और मेरे सामने पेश करें। हुक्म के मुताबिक बाईजान ने अपने दो मजबूत तरीन आदमियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए रवाना किए और इन दोनों के हाथ आपको एक ख़त भेजा जिसमें आप उसने लिखा था कि आप बला ताख़ीर इन दोनों आदमियों के साथ कसरा के सामने पेश होने के लिए चले आए। इसने इन दोनों से ये भी कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात अच्छी तरह जान लेने के बाद इसको आगाह करें। वो दोनों तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र तय करते हुए ताइफ पहुँचे। वहाँ इनकी मुलाकात तिजारती काफ़िले से हुई। उन्हें मालूम हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हैं। ताजिरों को जब मालूम हुआ कि कसरा ने फ़ौजी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करने के लिए जा रहे हैं, ताजिर खुश होकर मक्का मुकरमा पहुँचे और उन्होंने कुरैश को खुशखबरी देते हुए कहा, ये बात तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की है। कसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ गया है और इसने तुम्हें इनके शर से बचा लिया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरा के कास्तों की गुफ्तगू। इधर इन दोनों ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया। वहाँ पहुँचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और बाइज़ान का ख़ताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हुए कहा, कसरा ने अपने हाकिम बाइज़ान को हिदायत की है कि वो आपको लाने के लिए किसी को भेजे। चुनांचे हम इसलिए आए हैं कि आप हमारे साथ चलें। अगर आप हमारी बात मान लें तो हम कसरा से बात करके आपके लिए रियायत हासिल कर लेंगे और आपको उसकी तरफ से पहुंचने वाली हर मुतवक्का तकलीफ़ और अज़ियत से बचा लेंगे। लेकिन अगर आपने हमारी बात मानने से इनकार किया तो आप खुद इसकी ताकत से बखूबी वाकिफ़ हैं। आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो आपको और आपकी पूरी कौम को तबाह व बर्बाद करने की ताकत रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया, आज तो तुम लोग अपने ठिकानों को वापस जाओ, कल फिर आना। जब दूसरे दिन वो दोनों बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और पूछा, क्या आपने हमारे साथ चलने और कसरा से मिलने के लिए तैयारी कर ली है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आज के बाद तुम कसरा से नहीं मिल सकोगे।
اللہ ताला ने इसके बेटे शेरविया को फलां महीने की फलां रात इसके ऊपर मुसल्लत करके उसे हलाक करवा दिया है। जब इन दोनों ने ये सुनना तो इनके चेहरों पर दहशत और हैरत के आसार ज़ाहिर हुए और वो घूर घूर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। फिर वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोले, जानते हैं आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ये हम भाईजान को लिख दें? हाँ, ये सच है, और इसको ये भी लिख देना कि मेरा दीन कसरा की सल्तनत के आखिरी हदूद तक पहुँच कर रहेगा, और उसे ये भी लिख दो कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारा ये सारा इलाका तुम्हारे सुपुर्द करके तुमको तुम्हारी कौम का हुक्मरान बना दूंगा। इसके बाद वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर भाईजान के पास पहुँचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर से इसको मतला किया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रज़ा कसरा के गवर्नर बाइज़ान का मुसलमान होना, बाइज़ान ने लिखा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात दुरुस्त है तो यकीनन वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो सोचूंगा कि मुझे इनके साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए। फिर इसके चंद ही रोज़ बाद शेरविया का ख़त बाइज़ान के पास पहुंचा, जिसमें इसने लिखा था कि मैंने कसरा को अपनी कौम के इंतज़ाम में कत्ल कर दिया है। इसने हमारी कौम के शरीफ लोगों को कत्ल करना, इनकी औरतों को कनीज़ बनाना और इनके मालों को छीनना अपनी आदत बना ली थी। जब मेरा ये ख़त तुम्हारे पास पहुँचे तो अपने पास मौजूद तमाम लोगों से मेरी इताअत फरमाबरदारी का अहद ले लो। भाईजान ने इस ख़त को पढ़ते ही इस एक तरफ फेंक कर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया, और इसके साथ ही यमन में रहने वाले सारे ईरानियों ने इस्लाम कबूल करके हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कैसर रूम से मुलाकात। ये तो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दावत के सिलसिले में कसरा के पास जाने का किस्सा था, जो रूम के बादशाह के पास जाकर इस्लाम की दावत देने के मुतल्लिक है। रूम के बादशाह के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला की मुलाकात खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के ज़माने में हुई थी। इनकी मुलाकात का ये किस्सा भी हद दर्जा दिलचस्प और नहायत अजीब है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोमियो से जंग करने के लिए एक फ़ौज रवाना की थी, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता है। इसने अपने फ़ौजी अफसरों को इस बात की हिदायत कर दी थी कि अगर वो किसी मुसलमान सिपाही को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाएँ तो उसे कत्ल ना करें, बल्कि ज़िंदा इसके सामने पेश कर दें। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूमी फ़ौजियों के हाथों गिरफ़्तार हो गए। रूमी उन्हें बादशाह के पास लाए और ये कहते हुए इसके सामने पेश किया कि इनके साथियों में से जिन्होंने इस्लाम की इब्तदाई ज़माने में इनकी पुकार पर लब्बैक कहा था, हम इसको गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए हैं और आपके हुक्म के मुताबिक आपके सामने पेश कर रहे हैं। कैसर उन्हें देर तक बहुत गौर से देखता रहा, फिर उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारे सामने एक बात पेश कर रहा हूँ। वो क्या बात है? बादशाह ने कहा, तुम नसरानियत कबूल कर लो। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम्हारे साथ इज़्ज़त व इकराम का बेहतरीन सलूक करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी इस पेशकश को नफ़रत व हिकारत से ठुकराकर हद दर्जा यकीन और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हुए जवाब दिया कि नामुमकिन है, मौत मुझे तुम्हारी इस पेशकश से हज़ार गुना ज़्यादा महबूब है। कैसर ने इसको शीशे से में उतारने की कोशिश करते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम एक नहायत अक्लमंद और समझदार आदमी हो। अगर तुम मेरी ये पेशकश कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपनी हुकूमत में शरीक कर लूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बादशाह की इस खोखली पेशकश को सुनकर जंजीरों में जकड़ा हुआ कैदी बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा, और उसने नहायत बेनियाजी और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर तुम अरब व अजम की सारी सल्तनत भी मुझे दे दो और इसके बदले सिर्फ तुम ये चाहो कि मुझे एक लम्हे के लिए दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं, तो ये भी मेरे लिए हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। कैसर ने धमकी देते हुए कहा, तब मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी धमकी से डरे बगैर जवाब दिया, तुम्हारी मर्ज़ी, जो चाहो करो। फिर कैसर ने उन्हें तख्तादार पर बांधने का हुक्म दिया। इसके इस हुक्म की फौरी तामील की गई और उन्हें तख्तादार पर बांध दिया गया। इसके बाद उसने जलाल से रूमी ज़बान में कहा, इसके दोनों हाथों के आसपास तीर चलाओ। वो इस वक्त भी उन्हें नसरानियत कबूल करने की दावत दे रहा था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसने जलाद को इनके पाँव के इर्द गिर्द तीर मारने का हुक्म दिया। इस दौरान भी वो उन्हें अपने दीन छोड़ने की दावत दे रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी इनकार किया।
तब कैसर ने जल्लाद को रुक जाने का इशारा किया और कहा कि इसे तख्तेदार से नीचे उतार दो। फिर उसने एक बड़ी सी देग मंगवाई, इसमें तेल डलवाया और उसे आग पर रखवा दिया। जब तेल खौलने लगा तो उसने मुसलमान कैदियों में से 2 आदमियों को बुलवाया और इनमें से एक को खौलते हुए तेल में डलवा दिया। इसमें पड़ते ही मुसलमान कैदी के बदन का गोश्त अलग हो गया और हड्डियां नजर आने लगीं। इसके बाद कैसर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ रुख करते हुए फिर इनको नसरानियत कबूल करने की दावत दी, मगर उन्होंने पहले से भी ज़्यादा सख्ती के साथ इसकी दावत को रद्द कर दिया। चुनांचे कैसर ने दूसरे मुसलमान कैदियों को भी इस तेल में डलवाया और साथ साथ वो इनको नसरानियत की दावत भी देता रहा, जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बराबर शिद्दत से इनकार फरमाते रहे। चुनांचे जब वो इससे बिल्कुल मायूस हो गया तो उन्हें भी इसी देग में डालने का हुक्म दिया जिसमें इसने दोनों साथियों को डाला गया था। जब उन्हें घसीट कर देग की तरफ ले जाया जा रहा था तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। सिपाहियों ने कैसर से कहा कि ये रो रहा है। कैसर ने समझा कि अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई है। इसने सिपाहियों से कहा कि इनको मेरे पास लाओ। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके पास पहुँचे तो उसने फिर इस ख्वाहिश को दोहराया कि वो नसरानियत इख्तियार कर ले, मगर जब उन्होंने इनकार कर दिया तो कैसर ने दरियाफ्त किया, फिर तुम क्यों रो रहे थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अब्दुल्ला इस वक्त तुम इस देग में डाल दिए जाओगे और तुम्हारी जान निकल जाएगी। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि काश मेरे बदन में इतनी ही जानें होती जितने बाल हैं और वो तमाम जानें एक एक करके अल्लाह के दीन के लिए इस देग में डाली जाती। इस ख्याल पर मुझे रोना आ गया। कैसर ने पूछा, अच्छा क्या तुम मेरे सर को बोसा दे सकते हो? अगर तुम ऐसा करो तो मैं तुमको रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया और मेरे दूसरे तमाम मुसलमान साथियों को भी? कैसर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, दूसरे तमाम मुसलमान कैदियों को भी तुम्हारे साथ रिहा कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने दिल में सोचा कि ये अल्लाह का एक दुश्मन है। अगर मैं इसके सर को बोसा दे दूँ तो ये इसके बदले में मुझे और तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा कर देगा। ऐसा कर लेने में मेरा कोई क्या नुकसान है? ये सोचकर उन्होंने करीब जाकर इसके सर का बोसा ले लिया। कैसर ने अपने आदमियों से कहा कि तमाम मुसलमान कैदियों जमा करके अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के हवाले कर दिए जाएँ। चुनांचे इसके हुक्म की तामील की गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा की खिदमत में पहुँचे। उन्होंने अपने ये कारगुजारी को सुनाई, जिसको सुनकर वो बहुत खुश हुए और कैदियों को देखा तो फरमाया, हर मुसलमान पर ये हक है कि वो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर का बोसा दे और ये हक सबसे पहले मैं अदा कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर का बोसा लिया। सुबहान अल्लाह।